Hello, dear students of class 9th. Once again, I welcome you all in this online digital classes. So, as we all know, we are doing chapter number 13, which is surface areas and volumes. And in this chapter, we have concluded or finished exercise 13.1, which was based upon the figures cuboid and cube. And in that, we were finding the surface area, lateral surface area and total surface area. And in the second exercise, which we are going to start today, I think we have already started this exercise in our online classes. Today we have to just move further. Let me remind you, students, in this exercise we have studied about the curve, about the surface area of cylinder. Surface area of cylinder. But surface area generally used to be of two types. First one is curved surface area and second one is total surface area. Curved surface area of cylinder हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 2 pi RH. R क्या होता है? Radius of the base of the cylinder. For example, if I say this marker, this is also in the shape of cylinder, this is height, and if I say base or this one is the base, इस base का जो diameter है ये हो जाएगा d, ठीक है, और diameter का half हो जाएगा radius r. तो radius of the base of the cylinder r and height is the h of the cylinder, h is the height of the cylinder. And second is total surface area of a cylinder. Total surface area means curved plus base plus top, plus base plus top, ठीक है, और curved में only this curved portion. So and total surface area of the cylinder was 2 pi r into h plus r or r plus h. Okay, so today we shall start with question number 6 from this exercise 13.2. Yeah, let me read the question for you people. Curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meters square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find the height. Find its height. ठीक है, so question number 6. आपको क्या गिवन है? Radius of the base गिवन है, तो लिख लीजिए radius of the base of the cylinder. Radius of the base of cylinder. Radius हम r से डिनोट करते हैं, that is 0.7 meter. After that, curved surface area is also given to you in the first line. Curved surface area of the cylinder. Curved surface area of cylinder, right circular cylinder, is equals to 4.4 meters square. हाइट फाइंड करनी है. देखिए स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? 2 pi RH is equals to 4.4, 2 into 22 upon 7 into R. R कितना है आपके पास? 0.7 into H is equals to 4.4. I think cross multiply the values. H is equals to 4.4 into 7, इस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये तीनों वैल्यूज डिवाइड में 2 into 22 into 0.7. ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. 10 एलिमिनेटेड, 7 एलिमिनेटेड. सी 22 2s are 44 and 2 1s are 2. सो आपके h की वैल्यू आ रही है 1 और यूनिट्स क्या है? मीटर. सो h is equals to 1 meter. So that is, therefore you can write down height of the cylinder is 1 meter. In the last you can write down one line. Therefore height of the right circular cylinder is equals to 1 meter. All right. This was very easy question. After that, question number 8 we are going to do. Question number 8 is, in a hot water heating system, ठीक है, हीटिंग सिस्टम है जो वाटर को हॉट कर रहा है, ठीक है. देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर. एक पाइप है, मान लीजिए ये कोई पाइप है. इस पाइप की लेंथ कितनी है? 28 मीटर. सो देखिए, अगर तो सिलेंडर ऐसे स्टैंडिंग है तब आप इसकी हाइट कहते हैं. लेकिन अगर ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इट इज इन फ्लैट पोजिशन, तो आप इसकी क्या कहेंगे? जनरली लेंथ. लेकिन लेंथ क्या रहेगी? हाइट ऑफ द सिलेंडर. ओके, एंड डायमीटर, और अब जो इसको डायमीटर है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिलेंडर. सरफेस के अंदर कितना, मतलब सॉरी, सिलेंडर के अंदर कितना सरफेस है जो रेडिएट हो रहा है, मतलब जहां से हीट निकल रही है. अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये नहीं बताया गया है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया. लेकिन फ्रेंड्स इट इज जनरल नॉलेज, ठीक है. थोड़ा सा सोचिए. देखिए ये ना एक पाइप है जिसमें से वाटर क्या हो रहा है? कंटिन्यूली पास हो रहा है. जितना वाटर पास होगा वो हॉट होता रहेगा, ठीक है. अगर तो देखिए क्लोज रहेगा तो ना तो पानी आ सकेगा ना पानी जा सकेगा, सिर्फ एक उसके अंदर पानी कंटेन रहेगा.
लेकिन जब लगातार स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, पानी आ रहा है जा रहा है, तो इसका मतलब ना तो इसका बेस है ना ही इसका टॉप है, दोनों एंड्स नहीं है, सिर्फ क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया है जो वाटर को हीट कर रहा है। तो आप सिर्फ क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, आप डायमेंशन लिख सकते हैं, क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, दैट इज h। कितना गिवन है आपको लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, 28 मीटर। एल से मत डिनोट कीजिए फ्रेंड्स, एल कुछ नहीं होता आपके इस फॉर्मूले में, दैट इज हाइट ओनली। एंड डायमीटर, डी कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको क्या चाहिए होता है, रेडियस, तो रेडियस आप लोग फाइंड कर लीजिए, रेडियस r इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ओके, फाइव अपॉन 2 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टोटल रेडिएटिंग सरफेस। सो देयरफॉर टोटल रेडिएटिंग सरफेस, रेडिएटिंग मतलब जहां से हीट निकल रही है सरफेस से, ठीक है, जो वाटर को हीट कर रही है। सो टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा, जितना क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यू नो वेरी वेल, 2 पाई आर एच। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है आपके पास, 5/2। लेकिन फ्रेंड देखिए, ये जो है आपका सेंटीमीटर में गिवन है और ये मीटर में गिवन है, तो सारी डायमेंशन सेम कर लीजिए, या तो इसको मीटर में कर लीजिए या फिर इसको सेंटीमीटर में। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, सो मतलब 5/2 इंटू 100, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा मीटर में। सो 2 इंटू 100 इंटू एच, एच कितना है 28, सो 7 4 से 28, 2 से एलिमिनेटेड। फिर उसके बाद एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 से 20, सो 22 इंटू 20 अपॉन 100, सो एक जीरो एलिमिनेटेड हो जाएगा, 22 इंटू 2 44, और 44 अपॉन 10 गिव्स यू 4.4। लेकिन मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं आप लोग, तो मीटर स्क्वायर। टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना है फ्रेंड्स आपके पास, 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 44 अपॉन 10 गिव्स यू 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, this is a solution of question number 8. One more quick question we shall be doing, that is question number 11 from this exercise, and with that our exercise will be over. Since many of you haven't attended the online class, which was I think 2 or 3 days before, so in that session we have done first 5 questions of this exercise. But let me tell you students, you have to do complete exercise in your fair notebook. It doesn't mean that I have given the solution of 3 questions, so you have to do only 3 questions, that 3 questions in your fair notebook. You have to attempt the whole exercise, that is all the questions of the exercise. So now we shall be doing question number 11. The questions will be remaining, that will be your homework. You have to do on your own. If any problem, you can contact me. So, the students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base. एक स्टूडेंट्स विद्यालय में स्टूडेंट्स को क्या कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए बोला है, इसमें आप उनको क्या बनाना था, एक पेन होल्डर विच वॉज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस। एक सिलेंडर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये सिलेंडर विद अ बेस, इसका टॉप नहीं रहेगा, क्योंकि टॉप रहेगा तो पेंसिल आप रखेंगे कैसे, पेन रखेंगे कैसे, इस टाइप से अगर आपने पेन को होल्ड कर, ठीक है। तो क्या है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आएगा, कौन सा एरिया आएगा, बेस, एरिया ऑफ द बेस, जो कौन सी शेप की होती है, सर्कुलर। सिंस टॉप भी कौन सी शेप होती है, सर्कुलर, और बेस भी क्या होता है, सर्कुलर। लेकिन टोटल में हम 2 सर्कल इंक्लूड करते हैं, बेस प्लस टॉप। सो देखिए कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस प्लस बॉटम, सॉरी टॉप,
और बेस क्या है सर्कुलर, टॉप भी क्या है सर्कुलर, सर्कुलर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सो दो पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे बॉटम और बेस के लिए, एक बॉटम के एक टॉप के लिए। सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से जब आप 2 पाई आर कॉमन लेंगे अंदर क्या बच जाएगा आर प्लस एच या फिर एच प्लस आर। तो इसलिए फॉर्मूला आता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। लेकिन जब आप सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया बेस कंसीडर करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं ऐड करेंगे, ओनली पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। So the Vidyalaya was to, each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. Radius dimensions लिख लीजिए, radius of cylindrical pen holder, cylindrical pen holder, pen holder की shape कैसी है cylindrical. So R is equals to how much 3 centimeter. After that height, इसकी height कितनी है height is h is 10.5 सेंटीमीटर। सो देखिए ये तो है एक स्टूडेंट ने जो एक पेन होल्डर बनाना है। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। अभी विद्यालय ने क्या करना है स्टूडेंट्स को वो पेन होल्डर बनाने के लिए कार्डबोर्ड सप्लाई करना है, मींस वुडन जो पीस है वो सप्लाई करना है। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं 35, हाउ मच कार्डबोर्ड विल बी रिक्वायर्ड। एक स्टूडेंट सिर्फ एक पेन होल्डर बना रहे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, प्रतिभागी कितने हैं 35। तो क्या करें कितना चाहिए मटेरियल, जितना एक मटेरियल एक स्टूडेंट को चाहिए उसको क्या करेंगे 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक स्टूडेंट को इतना चाहिए जितना उसे कार्डबोर्ड पेन होल्डर बनाना है। पेन होल्डर में कौन कौन सा एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। सो लेट अस फाइंड आउट एरिया ऑफ वन पेन होल्डर दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है पाई आर, अंदर क्या बचेगा 2h प्लस आर। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास 3, 2 इंटू एच मतलब 10.5 प्लस अगेन 3, सो 22/7 इंटू 3, see 2 into 10.5 gives you 21, 21 plus 3 24। सो ये है एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, ठीक है, जो एक स्टूडेंट ने बनाया। कितने स्टूडेंट्स ने बनाया 35 बने, 35 कितने बनाएंगे 35 पेन होल्डर, सिंगल स्टूडेंट सिंगल पेन होल्डर बनाना है 35 कितने बनाएंगे 35। सो यू कैन राइट डाउन देयरफॉर एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स इज इक्वल्स टू, इसको क्या कीजिए 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 35। ये किस में आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सो सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ एलिमिनेट हो रहा है 7 5 से 35। तो जो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 5, इसका जो स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन आएगा कितना आ जाएगा 7920 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इतना कार्डबोर्ड क्या होगा यूज होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। कितना एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड है 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मेक 35 पेन होल्डर्स। 35 स्टूडेंट्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे, उन्हें 35 ही क्या बनाएंगे वो लोग पेन होल्डर्स बनाएंगे। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में किए थे। 3 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए हैं। अब जो रिमेनिंग 3 या 4 क्वेश्चंस बचते हैं वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। So till then students, thank you, and in the next session we'll be coming with exercise 13.3. Till then, thank you, take care and have a nice day.